Assalamu alaikum students, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss lecture number 1 part B. So this lecture is regarding what are the major terms or terminologies used in epidemiology. It means if we will be study epidemiology course, so what are the major terms to whom we will be interacting a lot and we will be using these terms. So knowing about these terms is very important. The first term most commonly used is population. In epidemiology, epidemiological studies, we will be using a term like population. So it's most commonly used. In population means group of people or group of similar people belonging from a same species and living together at a certain place. So this group of people represents population. Another term which we will be using in epidemiology includes disease, illness, studying, health. So like disease, it means the state of being not well is called disease. Illness means the extent of a disease, okay. And similarly studying, and health means the state of being well is called health, okay. And further distribution of the disease to determine determinants. Most important thing is like all these terms were used in the epidemiology literature, and starting from historical or discussing from historical point of view, all these terms were used in the literature. So these are the major terms which were used in literature in past few years. That's why we are studying these terms. And other terms, stages or stages or events, conditions to occur, occurrence, control, problem, science, human population, human groups, to prevent, prevention factors, knowledge, to understand, understanding, frequency, dynamics, process, public health. These are major or common terms we will be using in our course, and these terms are extracted from the literature. कि जब हम सारे literature को categorize करें और तमाम literature को ढूंढें, epidemiological literature को, तो उसमें define करें कि कितनी ज़्यादा terms use की गई हैं, तो वो हमें ये वाली terms मिलेंगी. Perfect. If you have any question or you want to understand or know about one of them, so I can explain, you can post in comment box. Further, this is very important. The determinants of epidemiology means what are the factors or base pillars to whom epidemiology depends. A determinant is a characteristic that affects the health of a population. तो ऐसी बेसिस, ऐसे पिलर्स जिन पे एक पॉपुलेशन की हेल्थ डिपेंड कर रही होती है, और वो एपिडेमियोलॉजी के मेजर पिलर्स या डोमेन्स कंसिडर की जाते हैं. तो उसमें डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर्स. तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड सोशल फैक्टर्स और सोशल डिटर्मिनेंट्स, ओके. एंड द सेकंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी इंक्लूड्स इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, एंड द थर्ड डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड जेनेटिक्स. Social determinants means what are the social factors which impact the extent of a disease or an epidemic. कौन कौन से social factors हैं, what kind of social habits people usually do follow. So these, जैसे social factors की अगर हम बात करें तो economic status, okay, और लोगों का economic status क्या है, social interaction क्या है, और religion क्या है उनका, और all these factors are responsible to assess or determine the extent of an epidemic, कि वो epidemic किस हद तक वहाँ पे फैल सकती है due to social factors. Further, environmental determinants. तो environmental determinants means temperature, water availability, ओके. और इसी तरह से जो बाकी एयर है, मॉइस्चर इन द एयर, तो ये सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करेंगे एक डिजीज़ की स्प्रेड होने में. सो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि एक एपिडेमिक को स्प्रेड होने में या उसके एक्सटेंट को फाइंड करने में हेल्प आउट करता है. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज जेनेटिक्स. मीन्स व्हाट इज द पीपल जेनेटिक्स. लोगों के जीनोमिक मेकअप क्या है, लोगों की जीन्स किस तरह से, आइदर दे आर स्ट्रॉन्गर और देयर आर चांसेस ऑफ म्यूटेशन इन देयर जीनोम और दे हैव अडॉप्टेड अ सर्टेन इन्वायरमेंट. तो एक इन्वायरमेंट में कोई एपिडेमिक है तो उस एपिडेमिक क्या उस इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली इफेक्ट कर रही है, जियोग्राफी रीजन टू रीजन लोगों के जो जीनोमिक मेकअप है, जीनोमिक जीन्स हैं बेसिकली, वो क्या उस एपिडेमिक के स्प्रेड होने को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या फेवर कर रहे हैं. So we can see how an epidemic will be interacting or making interventions within the genomic makeup of an individual. तो वो जो genomic variations हैं उनको भी consider किया जाता है. And this also determines the impact of an epidemic or we can say the extent of an epidemic in a particular population. Okay, this is a very important topic and this is regarding types of epidemiology. Means अगर हम epidemiology को characterize करें तो उसकी कितनी types हैं.
तो एपिडेमियोलॉजी की जर्नल क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो एपिडेमियोलॉजी की 3 बड़ी टाइप्स हैं, जिसमें एक है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, दिस वन, द सेकंड वन इज़ एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी एंड द थर्ड वन इज़ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी. These are the 3 major we can say types of epidemiology or domains of epidemiology. First one, like descriptive epidemiology, we will discuss about it, then analytical epidemiology, and then the modern epidemiology, which includes infectious disease epidemiology, chronic disease epidemiology, clinical epidemiology, genetic epidemiology, occupational epidemiology, and cancer epidemiology, and further neuroepidemiology. These are all the domains which we will be discussing. First, descriptive epidemiology. To understand descriptive epidemiology, this is very easy to know about. Means you should keep 5 W's in your mind. Descriptive epidemiology में हम एक epidemic की description को study करते हैं. उसकी description के ये means how it occurred, या 5 W's means what is an epidemic or epidemiology, and who discovered or this epidemiology, okay, and why this epidemiology occurs, what, when, who, and why. Okay, these are actually 5 W's which we study in descriptive epidemiology. Once we will be assessing an epidemic on 5 W's, it means we are studying or we are going for the descriptive epidemiology. And the second one is analytical epidemiology. In analytical epidemiology, we discuss about different variables and hypothesis testing. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स की हम लोगों के पास 3 टाइप्स होती हैं जो कि हम एपिडेमियोलॉजी में फॉलो करते हैं या एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में. दोज वेरिएबल्स आर एक्चुअली मैथमेटिकल टर्म्स, लाइक जब हमें किसी डिजीज़ की इटियोलॉजी पता नहीं है तो हम उसको प्रपोज कर लें. सिमिलरली जैसे मैथमेटिक्स में हमें कोई वैल्यू मालूम नहीं होती तो हम उसमें एक्स प्रपोज कर लेते हैं. इसी तरह हम एपिडेमियोलॉजी में कुछ वेरिएबल प्रपोज करते हैं, जिनको हम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे उनकी 3 टाइप्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. सो दीज आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स विच वी विल बी स्टडीइंग इन एपिडेमियोलॉजी और इन एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी. फर्दर हाइपोथेसिस टेस्टिंग है. तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में हम बहुत सारी हाइपोथेसिस, बहुत सारे आइडियाज़ भी प्रपोज करते होते हैं. तो वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो हम प्रपोज करते हैं, एंड सो दोज आइडियाज़ आर टर्म्ड एज हाइपोथेसिस. और उन हाइपोथेसिस की कितनी टाइप्स होती हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस विच वी फॉलो इन एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी स्पेसिफिकली. तो वो 5 कौन कौन सी हाइपोथेसिस हैं, हम उनको एक एक को नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे और विद एग्जांपल्स. जैसे सिंपल हाइपोथेसिस है, कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है, और इस तरह से बाकी हम लोगों के पास हाइपोथेसिस की टाइप अल्टरनेटिव है, नल हाइपोथेसिस है. तो हम एक एक हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स जस्ट टू मेक क्लियर द यूर कॉन्सेप्ट. अब थर्ड एपिडेमियोलॉजी की जो ब्रांच है हम लोगों के पास, दैट इज़ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी. इन मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी वी एक्चुअली स्टडी इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी की, इन्फेक्शियस डिजीज़ की एपिडेमियोलॉजी के वो उनके स्प्रेड पैटर्न्स क्या हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, हाउ वी कैन इंटरवीन इन इन्फेक्शियस डिजीज़, उनको कम कैसे कर सकते हैं. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर स्टडीड इन इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी. फर्दर है हम लोगों के पास क्रोनिक डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी. क्रोनिक डिजीज़ में कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं विच आर लॉन्ग टर्म, कि बहुत ज़्यादा अरसे से हो रही हैं, जैसे न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो वो बहुत लॉन्ग टर्म होती हैं. तो ऐसी डिजीज़ को हम क्रोनिक डिजीज़ कह सकते हैं. और उन क्रोनिक डिजीज़ की एपिडेमियोलॉजी की वो एक पॉपुलेशन में कितनी ज़्यादा मौजूद हैं, कितनी प्रेवलेंट है. फर्दर हम लोग पास क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी कि क्लिनिकल लेवल पे हम देखेंगे कि एक डिज़ीज़ कितनी स्प्रेड है. क्लिनिकल लेवल पे उसको क्लिनिकली एवेलुएट किया जाता है, और वो ऐसी हॉट स्पॉट एपिडेमिक्स होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी हों, तो हम उनको क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी की रेंज में ऐसी एपिडेमिक्स को कंसिडर करते हैं. और क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि वो उसकी स्प्रेड की जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको स्प्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं, और क्लिनिकल लेवल पे हम उनको स्टडी करते हैं. ओके, और एट द हॉस्पिटल लेवल. फर्दर है जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी. तो जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी में हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी म्यूटेशन हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, विच आर एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर एजेंट और इन्फेक्शियस एजेंट, या एक डिज़ीज़ में कौन कौन से जीन्स ऐसे हैं जो कि एबनॉर्मल हैं. ओके, तो हम उसको जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी की डोमेन में कंसिडर करते हैं और उस जीन को स्टडी करते हैं. वाई दिस जीन इज़ म्यूटेटेड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक पॉपुलेशन में ये कॉमन म्यूटेशन आ रही है. तो कॉमन म्यूटेशन को फाइंड करने के लिए हम जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पढ़ते होते हैं. ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी. ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी से मुराद है कि अगर लोगों का एक ऑक्यूपेशन है, सपोज इफ़ पीपल आर वर्किंग इन अ न्यूक्लियर रेडियो एक्टर्स, तो जो रेडियो एक्टिविटी वहाँ पे होती है, तो ऐसे लोगों में कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे. तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे केमिकल्स हैं कि यहाँ कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है जिससे लोगों में एक डिज़ीज़ कॉमन हो रही है.
उस जैसे सपोज एक इंडिविजुअल है जो कि हॉस्पिटल में काम करें तो दे विल बी इफेक्टेड और सफरिंग फ्रॉम नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, तो हम उनकी ऑक्यूपेशन, लोगों का जो प्रोफेशन है उस ऑक्यूपेशन की वजह से उनको कौन कौन सी डिजीज़ हो रही हैं, दीज डिजीज़ आर एक्चुअली स्टडीड इन occupational epidemiology. Further cancer epidemiology, so this is very easy to understand कि हम देखते हैं कि कैंसर की क्या वजह है, एक सर्टन टाइप का कैंसर है तो उसकी कौन कौन सी वजह है, किस किस वजह से वो कैंसर हो रहा है. सो दिस लाइज इन द डोमेन ऑफ कैंसर एपिडेमियोलॉजी, और वो एक पॉपुलेशन में कितना स्प्रेड है. फर्दर है न्यूरो एपिडेमियोलॉजी, सो इसमें हम स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और न्यूरॉन्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें न्यूरॉन्स की एबनॉर्मलिटीज़ कॉमनली एसोसिएटेड है एक पॉपुलेशन में. सपोज एक पॉपुलेशन है 1000 लोगों की, तो उसमें कितने लोग जो हैं वो न्यूरो डेवलपमेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से इफ़ेक्ट हैं और उसकी वजह क्या है. तो उसको फाइंड करने के लिए हम एक पॉपुलेशन में न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं और असेस करते हैं एक डिजीज़ की प्रेवलेंस को. सो दीज आर सम journal domains and we can say some specific domains of epidemiology. So I will just summarize. There are 3 major domains of epidemiology or types of epidemiology. The first one descriptive epidemiology, the second one analytical epidemiology, and the third one is modern epidemiology. So in next lecture we will be studying what are the types of variables and what is the hypothesis testing and what are the types of hypothesis. Okay, so stay tuned. If you have any question, post your question in comment box. Allah Hafiz.